हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गौरव नार आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है आईटीसी लिमिटेड का जो एजीएम होने वाला है 11 अगस्त को। उससे हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरा देखें, इसको स्किप करके ना देखें। और मैं इस वीडियो को एक टाइटल दिया है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो ये क्यों दिया है, तो एक इसके बाद एक वीडियो लगेगा जिसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर है आईटीसी के चेयरमैन है मिस्टर संजू पुरी, उनका एक वीडियो लगेगा और उसके बाद मैं अपना वीडियो कंटिन्यू करूंगा। तो सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। From a broader issue of shareholder value, this is an area that is certainly topmost in my mind, topmost in the mind of the board, and it is quite, in fact, surprising to see the price, the position in the market, because in the last 3 years, our EPS has gone up by 47%. Our return on segment capital has gone up from 61 to 72%. Each of our businesses, I'm talking about older businesses, are leaders in their segments, whether it's paper, agriculture, hotels. They are leaders in the quality of products and services. They are leaders in terms of the superior financial metrics that demonstrate our fundamentals are strong. We have robust cash flows. We are debt free. And we have good quality of governance. For having said that, we have looked at various tools and facets and various suggestions that have come on how to create shareholder value. It starts with the suggestions on capital allocation, dividend distribution. There are suggestions on buyback. There are also suggestions on restructuring, and we do take all these suggestions very seriously and examine it and do what will create sustained value, not just fleeting value at a point of time. So in that context, let us see what have we done in this context in the recent past. We have come out with a very clear capital allocation policy. In the hotel segment, we have said we are going the asset right route, which means that the focus will be on management contracts. As far as dividend distribution is concerned, we have a clear policy. 80 to 85% of dividend will be distributed, and the yield at today's price is upwards of 5.5%. As far as buybacks and restructuring is concerned, as I had said in the AGM, this point had also come up in the AGM, that we take note of these suggestions and the board will look at it, and whatever needs to be done to unlock or create value for shareholders or stakeholders, the board will definitely look at it, but it has to take a holistic view, keeping the long-term sustained growth trajectory. तो अभी आपने सुना जो आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है संजू पुरी साहब, उन्होंने बोला कि आईटीसी लिमिटेड का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और इसे लेके ये प्रॉब्लम उनका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा। और जो उनका ईपीएस है वो पिछले 3 साल में बढ़ रहा है, उनका जो प्रोडक्ट है उसका सब ब्रांडेड है और वो सेगमेंट में किस तरह से काम कर रहा है इसके बारे में वो बोल रहे थे। और जो सजेशन उनके पास आ रहे हैं जो शेयर होल्डर और शेयर का प्राइस बढ़ाने के लिए मदद करेंगे, ऐसे हर जो पैरामीटर है, चाहे वो डिविडेंड, बायबैक, डीमर्जर, स्प्लिट, बोनस और ज़रूरत पड़ने पर बायबैक, इस सब चीज़ों पे वो बोर्ड के सामने डिस्कशन करेंगे। उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और वो सब फाइनलाइज होने के बाद आपके सामने एजीएम में वो आएंगे और बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या डिसीजन लिए हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को अब पूरी तरीके से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और एजीएम में हमें क्या आईटीसी लिमिटेड से एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आईटीसी का जो बोनस हिस्ट्री है, क्या आईटीसी बोनस दे पाएगा? तो पिछले हिस्ट्री में आईटीसी ने अभी तक 7 बार बोनस दिया है, तो हमें नहीं लगता कि आईटीसी इस बार बोनस देगा, क्योंकि बोनस देने के बाद शेयर का प्राइस कम होता है, लेकिन जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है मार्केट में आईटीसी लिमिटेड के जो शेयर मौजूद है वो बढ़ जाएंगे और ये आईटीसी लिमिटेड को शेयर प्राइस बढ़ाने में बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा।
अगला पॉइंट है कि क्या स्प्लिट हो सकता है। फ्रेंड्स, स्प्लिट में फेस वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही साथ शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो सकते हैं, कम हो जाएंगे, लेकिन शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। जबकि प्रमोटर के पास एक भी शेयर नहीं है, तो रिटेल का 10% से ज़्यादा पार्टिसिपेशन आईटीसी लिमिटेड में है, तो हमें ये भी नहीं लगता कि इस बार आईटीसी का स्प्लिट होगा। अगली पॉसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो दोस्तों डीमर्जर को लेकर ही है। हमें ऐसा लगता है कि आईटीसी लिमिटेड का डीमर्जर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट इस एजीएम में आ सकती है। मेनली आईटीसी लिमिटेड 5 सेगमेंट में काम करता है। एफएमसीजी में सिगरेट एंड अदर बिजनेस, होटल, एग्री बिजनेस, पेपर, पैकेजिंग और उसका आईटी। इसके अलावा आईटीसी का होटल बिजनेस, आईटीसी का हॉस्पिटलिटी बिजनेस है। उसके बाद आईटीसी का आईटी का बिजनेस भी है। तो हमें लगता है फ्रेंड्स, आईटीसी एक कंपनी का 3 कंपनी में बंटवारा होना चाहिए, जिससे जो फंड मैनेजर है और जो एनालिस्ट है उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी और इन्वेस्टर को भी चॉइस मिलेगा कि उनको जो सेक्टर में चाहिए वो सेक्टर में इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला कंपनी हमें लगता है कि डीमर्जर के बाद होना चाहिए, वो है एफएमसीजी का सिगरेट और होटल। ये दोनों का बिजनेस मर्ज हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फिगर लाया हूँ। ये सब फिगर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का है। उसमें कोविड का इम्पैक्ट ज़्यादा था, ये भी गौर करने वाली बात है। तो उस फिगर पे ही मैंने ये सब कैलकुलेशन निकाला है। तो अगर आईटीसी का ये दोनों बिजनेस मर्ज हो जाता है तो इनका दोनों का वैल्यूएशन आ जाएगा लगभग 2,10,000 करोड़ के पार, और शेयर का प्राइस दोनों को मिला के हो सकता है मार्केट 170 से लेके 175 रुपीज़ तक दे सकता है। दूसरा कंपनी जो आईटीसी से अलग हो सकता है वो हमें लगता है कि एफएमसीजी कारोबार होगा, क्योंकि ये अच्छा कारोबार है और अच्छा दिखा रहा है, लेकिन इसमें ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो बहुत कम है। और आने वाले दिनों में अगर ये डिमर्ज हो जाएगा तो ये अलग कंपनी होने के कारण ये इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा सकते हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ सकता है। तो अगर ये कंपनी अलग से लिस्ट होगी तो मार्केट इसको लगभग 40 से लेकर 45 रुपीज़ का प्राइस देगा, और इसका मार्केट कैप हो सकता है 50 करोड़ से लेकर 60 करोड़ के बीच में हो सकता है। थर्ड कंपनी हमें लगती है जो डीमर्जर से आईटीसी से अलग होके बन सकती है, उसका एग्री बिजनेस, पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग जो बिजनेस है उसके लिए मार्केट पे करने को रेडी होगा 40 से लेकर 50 रुपये तक का प्राइस, और इसकी भी मार्केट कैप है वो 50,000 से लेकर 60,000 के बीच, 50,000 60,000 करोड़ के बीच हो सकती है। तो कुल मिला के ये सब कैलकुलेशन किया जाए तो आईटीसी का प्राइस लगभग डीमर्जर अगर अनाउंसमेंट हो सकता है तो लगभग 260 के करीब हो जाएगा, और वैल्यूएशन आईटीसी का मार्केट कैप 2,50,000 करोड़ से बढ़ के 3,20,000 करोड़ तक होगा। ये सब फिगर ये कोरोना के ड्यूरेशन की है, जबकि अभी सब स्टेट में कोरोना का इफेक्ट बहुत ही कम है, और इसमें और पॉसिबिलिटी है कि शेयर प्राइस और ज़्यादा बढ़ सकता है ये, लेकिन हम ऐसे मान सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव टारगेट होगा अगर आईटीसी का डीमर्जर का कोई भी न्यूज़ उनके एजीएम में आया तो। फ्रेंड्स, इससे फ़ायदा क्या होगा, मैनेजमेंट को उनकी पॉलिसी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट की पॉलिसी है कि आईटीसी का जो कैश काउ बिजनेस है सिगरेट का, वो उनका कैश वो होटल बिजनेस में और हॉस्पिटलिटी में डिप्लॉयड कर रहे हैं। ये उनका पॉलिसी वैसे ही रहेगा, इसमें उनको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें लगता है कि ये पॉसिबिलिटी जो डीमर्जर है उसकी अनाउंसमेंट एजीएम में होने की पूरी संभावना है। तो इससे क्या होगा, जो अलग अलग बिजनेस होगा उनको हर बिजनेस को फोकस करने में हर मैनेजमेंट को उतना टाइम मिलेगा, और डिवाइड करने से वो मैनेजमेंट उस बिजनेस पे
बहुत ही ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। इससे आईटीसी का लगभग 70,000 करोड़ तक मार्केट का कैपिटलाइजेशन बढ़ सकता है और ये इससे इन्वेस्टर को भी फायदा होगा और आईटीसी को भी फायदा होगा। इससे स्टॉक का री रेटिंग होने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और ये सस्टेनेबल बेसिस पे होगा। अगर आईटीसी बायबैक करता है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? आईटीसी के पास अभी के मौजूदा समय में रिजर्व्स है लगभग 60,000 करोड़ का। तो मार्केट में ये भी एक रूमर है कि आईटीसी जो गवर्नमेंट आईटीसी में हिस्सा बेचना चाहती है तो वो 7% का जो पूरा हिस्सा है वो आईटीसी खुद के पैसे से ही बायबैक कर सकती है। ऐसे भी न्यूज़ मार्केट में है। अगर बायबैक आईटीसी करता है तो 230 से लेकर 250 तक एक फेयर प्राइस आईटीसी का है और वो उस लेवल में बायबैक कर सकते हैं। बायबैक का अमाउंट कितना होगा? लगभग 20,000 करोड़। अगर आईटीसी खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक खरीदना चाहती है तो ये 20,000 करोड़ का होगा। अगर आईटीसी को लगता है कि उसे और ज़्यादा बायबैक करना चाहिए तो ये बढ़कर 50,000 करोड़ तक भी हो सकता है। इससे एडवांटेज क्या होगा? जो नंबर ऑफ फ्री फ्लोट ऑफ शेयर है, जो मार्केट में आईटीसी का आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स है वो 1230 करोड़ है और वो कम होके 1,000 करोड़ के लगभग हो जाएगा, जिससे आईटीसी का जो शेयर प्राइस है उसको इंक्रीज करने में मदद होगा और गवर्नमेंट का हिस्सा पूरी तरह के बिक जाएगा। फ्रेंड्स, इसी सब को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने एक ऑप्शन कॉल लाया हूँ जिसमें आप सब भी आईटीसी का ये जो सौदा है वो आप सबके लिए भी फायदे का सौदा बन सके। इसलिए हमें इस सब को कैसे प्ले करना चाहिए? तो ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाय करने का, जो अगस्त सीरीज का जो मौजूदा सीरीज है उसका 205 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हो। कितने में बाय करने का? 5-5.5 रुपये से लेके 6 रुपये के बीच में बाय करने का और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं लगभग 2 रुपये से लेके 2 रुपये 50 पैसे तक। आपका जैसा रिस्क है उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा लो। इसमें टारगेट अगर आईटीसी का डीमर्जर का न्यूज़ या बायबैक का न्यूज़ और इसके अलावा डिविडेंड और अन्य प्रकार के कोई गाइडेंस या अन्य प्रकार के कोई न्यूज़ अगर आए तो आईटीसी बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव दे सकता है और ये उसके ऑप्शन में बिल्कुल भी मार्केट में इग्नोर किया। ये सब पॉसिबिलिटी मार्केट उसे अभी इग्नोर करके चल रहा है। तो पहला टारगेट हमें लगता है कि 12 रुपये का होगा, दूसरा टारगेट 16 रुपये का, और जो बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर है जिन्हें बिल्कुल यकीन है ये ऐसा जो रूमर मार्केट में फैलाया जा रहा है वो हो जाएगा, तो आईटीसी में आपको 35 से लेकर 40 रुपये तक का ऑप्शन ये बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? लगभग 20,000 रुपीज़ के करीब एक लॉट के लिए, और रिस्क कितना है? 12,000 का रिस्क है। अगर ये ट्रेड आपके फेवर में चल गया तो आप कम से कम 20,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक इसमें एक लॉट में मुनाफा बांध सकते हैं। आपको जितना प्रॉफिट चाहिए उतना प्रॉफिट आप लेके इस ट्रेड से निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कॉल मैंने आपके लिए लाया है। अगर ये वीडियो आपको लगा अच्छा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।